ਯੈਸ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ? ਕੈਸੇ ਹੋ ਸਾਰੇ? ਕਿੱਦਾਂ? ਵਧੀਆ ਸਾਰੇ, ਰਾਈਟ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡੀ CSAT ਫॉर ਪੰਜਾਬ PCs ਦੀਆਂ ਜੋ ਕਲਾਸਾਂ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਰਾਈਟ? ਹੋਪ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਯੂਨੀਕ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਈਟ? ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਜੋ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜੋ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਈ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ? ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੀ ਜੋ PDF ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਨੋਟਸ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਐਪ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ? ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ। ਪਰ ਲੈਕਚਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਥਾਟ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਰਹੋ, ਹੈ ਨਾ? ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਨੈਸੈਸਰੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਥਾਟ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜੋਸ਼ੀਲਾ ਥਾਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ। ਯੂ ਕਾਂਟ ਹੈਵ ਅ ਬੈਟਰ ਟੂਮੋਰੋ ਇਫ ਯੂ ਸਟਿਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਯੈਸਟਰਡੇ, ਰਾਈਟ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸਟ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਗਲਤ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਧਾਰੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤਾਂ ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜੋ ਮੂਮੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦੀ ਨੀਡ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਜੋ ਟੁਮਾਰੋ ਜੋ ਫਿਊਚਰ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਰਾਈਟ ਹੋਵੇ, ਰਾਈਟ? ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਮੂਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਓਕੇ, ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰੈਂਕਿੰਗ, ਹੈ ਨਾ? ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੋਂ ਵੀ 1-2 ਕੁਐਸਚਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ CSAT ਦੇ ਪੇਪਰ ਲਈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਜੋ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰ ਪਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜੋ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ ਨਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜੋ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਾਈਟ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ? ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਨਾ? ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਚੈਪਟਰ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਟਵਿਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ इंट्रोडक्शन देखते हैं किद्दां दा चैप्टर है, किद्दां दे क्वेश्चन ये आते हैं, राइट? सो सब तो पहले इसमें हमारे पास जो है वो होता क्या है इस चैप्टर में, है ना? सबसे पहले आप बस रैंकिंग, है ना? चैप्टर का नाम क्या है? रैंकिंग, ठीक है? जैसे तो जब आप छोटे बच्चे थे, है ना, 5th-6th क्लास में, 10th क्लास में, तो काफ़ी शौक होता था कि फर्स्ट रैंक आए, है ना, ट्रॉफी मिलेगी, सेकंड रैंक आए, थर्ड रैंक आए, तो उसी टाइप का ये चैप्टर है, ठीक है? मतलब कि कुछ पर्सन लाइन में जो है वो खड़े होते हैं, सिंगल लाइन में या डबल लाइन में, है ना? जैसे स्कूल में जब प्रेयर होती थी तो लाइन में सारे लगे होते थे, ठीक है? तो रैंकिंग मतलब कि कौन कितने नंबर पे है, 7th नंबर पे है, इस साइड से उस साइड से, ना? ये सारी चीज़ें जो है इस चैप्टर में आती हैं, ठीक है दोस्तों? तो बहुत ही आराम तरीके नाल, बहुत ही अच्छे तरीके नाल समझते हैं कि क्या बेसिक है इस चैप्टर का, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, है ना, मैं आपको लाइन वाइज आप इसमें करवाती हूँ आपको, ठीक है? सबसे पहली चीज़ आती है कि सपोज कुछ पर्सन है वो ऐसे लाइन में लगे हुए हैं, है ना? सपोज ये लाइन है आपके सामने, ठीक है ना, जो मैंने ड्रॉ किया यहाँ पे, तो कुछ पर्सन है वो यहाँ पे है, सपोज 30 पर्सन है, ठीक है ना? 30 पर्सन है और वो इस लाइन में ऐसे लगे हुए हैं, ठीक है? सपोज एक पर्सन है अर्जुन, ठीक है? एक पर्सन है अर्जुन और वो लगा, ये देखो, जब भी आप एक लाइन बनाते हो, है ना, तो आपको देखना पड़ेगा कि उसकी लेफ्ट साइड कौन सी है ना? तो बेसिकली हम ये वाली लेते हैं, लेफ्ट साइड, है ना, क्योंकि हम ये मानते हैं कि जो पर्सन है वो नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, है ना? नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, तो इस साइड को हम लेफ्ट मानते हैं, इस साइड को हम क्या मानते हैं? राइट मानते हैं ना? डायरेक्शन चैप्टर में हमने देखा हुआ है, तो ये क्या आ जाएगी हमारे पास? राइट साइड, ठीक है? तो स्टूडेंट पहली बात क्या है कि लाइन है ना? बेसिकली अगर आपको क्वेश्चन में ना दे रखा हो कि नॉर्थ को देख रहे हैं, तो आपने नॉर्थ लेना है उसको, ठीक है? तो ये लेफ्ट साइड आ गई, ये आपके पास क्या आ गई? राइट साइड आ गई, ठीक है? अब आपको इसमें पहला जो टाइप का क्वेश्चन इसमें आता है, पहला जो कंसेप्ट है वो क्या है कि 30 पर्सन है सपोज, है ना? 30 पर्सन है और वो एक लाइन में है, राइट? और उसमें से एक पर्सन है अर्जुन, ठीक है? आपको दिया हुआ जो अर्जुन है वो लेफ्ट साइड से अगर देखें तो 11th नंबर पे है, 11वें नंबर पे। अगर उसको इधर से देखा जाए, है ना, लेफ्ट साइड से उसको देखा जाए तो वो 11वें नंबर पे है। आपको बताना है वो राइट से कितने नंबर पे होगा, ठीक है? तो अगर आप इसको थोड़ा हल्का सा इमेजिन भी कर सकते हो, देखो 11th नंबर पे है अर्जुन लेफ्ट से, है ना? मतलब यहाँ पे अर्जुन को मिला के यहाँ पे कितने लोग होंगे? 11 लोग होंगे अर्जुन को मिला के,
ठीक है, टोटल 30 लोग हैं, है ना। तो 11 अगर ये हैं अर्जुन को मिला के, तो अर्जुन के राइट में, है ना, अर्जुन के इस साइड कितने लोग होंगे? 19 होंगे ऑफ कोर्स, है ना, क्योंकि टोटल 30 लोग हैं ना। अर्जुन के इधर होंगे 19 लोग। अब आपसे पूछा है कि अगर राइट साइड से अर्जुन को देखा जाए, इस साइड से अगर देखा जाए, तो अर्जुन कितने नंबर पे दिखेगा? तो 19 तो अर्जुन के राइट में हो गए, है ना। अब देखो अर्जुन वाली पोजीशन को भी तो मिलाएंगे ना, तो 19 + 1 20। तो अर्जुन का राइट से रैंक कितना होगा? 20th फ्रॉम द राइट। क्लियर? ये पहला कंसेप्ट है इस चैप्टर का कि आपको इसमें ये दिया है कि नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं लाइन में, है ना, और उसमें से एक पर्सन जो है उसका लेफ्ट से रैंक दिया हुआ है और आपने कहाँ से निकालना है? राइट से निकालना है। ठीक है, तो आई होप ये सारा जो है वो चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं ताकि जो क्लैरिटी है वो और ज़्यादा अच्छे से आपको हो जाए, राइट। सो लेट मी रब दिस। एक और क्वेश्चन लेते हैं, है ना, इसी टाइप का क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, देखो सपोज ये लेफ्ट साइड होती है हमेशा, ये राइट साइड, है ना, हमेशा मतलब कि जब आप नॉर्थ को देखते हो, है ना, मोस्टली क्वेश्चन में नॉर्थ ही होता है, राइट। तो सपोज 40 लोग हैं इस लाइन में। ठीक है दोस्तों, 40 लोग टोटल है लाइन में। और सपोज प्रीति, ठीक है, प्रीति जो एक लड़की है उसका लेफ्ट से दिया हुआ 21st, है ना, कि अगर लेफ्ट साइड से देखें तो प्रीति जो वो कितने नंबर पे है? 21st पे, है ना। तो आपको ये बताना है कि राइट से प्रीति की पोजीशन क्या होगी, है ना, कि अगर राइट साइड से देखें, अगर इधर से देखें तो प्रीति कितने नंबर पे होगी। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहले देखो, प्रीति को मिला के, प्रीति को इंक्लूड करके यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक कितने लोग हो जाएंगे? 21 लोग हो जाएंगे, है ना, प्रीति को मिला के, राइट। तो प्रीति के राइट में कितने लोग होंगे? है ना, टोटल 40 लोग हैं, प्रीति के राइट में कितने होंगे? 19 होंगे। ठीक है, 19 तो राइट में होंगे। अब प्रीति को भी तो इंक्लूड करना है ना, राइट से देख रहे हैं, तो 19 इधर हो गए, 1 प्लस कर देंगे मतलब 20th, मतलब प्रीति की राइट से जो पोजीशन है वो कितनी होगी? 20th होगी। ठीक है, मतलब सिंपल है कि आप ये देखोगे कि राइट में कितने लोग हैं और उसमें क्या ऐड कर दोगे? 1 ऐड कर दोगे। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन जो है वो आप इसमें कर सकते हो, क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ। ठीक है, ये लेफ्ट साइड होगी, ये राइट साइड होगी। सपोज टोटल 100 लोग हैं। ठीक है, लाइन में टोटल कितने लोग हैं? 100 लोग हैं, राइट। और ए कोई पर्सन है, उसका रैंक दिया हुआ 31st, कहाँ से? लेफ्ट से, है ना, एल मीन्स लेफ्ट। तो आपने बताना राइट से रैंक कितना होगा, है ना। 1 सेकंड में आंसर दे सकते हो आप। 31st है लेफ्ट से, राइट से रैंक कितना होगा? आपने ये देखना राइट में लोग कितने हैं। ठीक है, तो राइट में कितने लोग आएंगे आप बता सकते हो? राइट में कितने लोग आएंगे? 69 आएंगे, है ना, क्योंकि टोटल 100 है। तो 69 में कितना ऐड कर दोगे? 1 ऐड कर दोगे। 69 + 1 मतलब 70th। तो प्रीति का राइट से रैंक जो है वो कितना आ जाएगा? 70th आ जाएगा, राइट। तो स्टूडेंट ये पहली टाइप के बेसिक क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको लेफ्ट से जो रैंक है वो दिया हुआ है, टोटल पर्सन आपको दिए हुए हैं और आपसे पूछा राइट से रैंक बताओ। ठीक है, अब देखो इसका ना ऑपोजिट भी आ सकता है। ऑपोजिट मीन्स हमने ये जो 2-3 क्वेश्चन किए, इन सब में हमने क्या लिया है? इन सब में हमने पर्सन का जो रैंक है वो लेफ्ट से लिया है ना। ऐसा भी हो सकता है कि उसका जो रैंक है वो हमें राइट से गिवन हो। ठीक है, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज टोटल 60 पर्सन है, ठीक है ना। तो आप इमेजिन कर सकते हो टोटल 60 पर्सन है इस लाइन में, राइट। और एक पर्सन ए है, उसका अब राइट से रैंक दिया हुआ है 51st। कहाँ से? राइट से। राइट से मीन्स अगर इधर से देखते हो आप तो ये जो पर्सन है ये कितने नंबर पे है? 51st पे, राइट। तो देखो मतलब यहाँ पे इस पर्सन को मिला के टोटल कितने पर्सन हो जाएंगे? 51 हो जाएंगे टोटल पर्सन, है ना। तो इस साइड टोटल कितने? ए के इस साइड और ए को मिला के टोटल कितने लोग हो गए? 51 हो गए। मतलब ए के लेफ्ट में कितने लोग होंगे? 9 होंगे। 9 क्यों? क्योंकि टोटल आपके पास 60 लोग हैं, राइट। तो ए के लेफ्ट में 9 है, तो ए को मिला के तो जो ए का लेफ्ट से जो रैंक है ना, वो कितना आ जाएगा आपके पास? 10th आ जाएगा आराम से, राइट। ठीक है, तो स्टूडेंट ये हमारे पास पहला कंसेप्ट था कि आपको टोटल नंबर ऑफ पर्सन आपको इसमें दिए हुए हैं और एक पर्सन का जो रैंक है वो लेफ्ट से दिया होगा या फिर राइट से दिया होगा। लेफ्ट से दिया होगा तो राइट से पूछा जाएगा और अगर राइट से दिया होगा तो लेफ्ट से पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल आराम से जो ये क्वेश्चन है वो आप कर सकते हो, राइट। ठीक है, अब बढ़ते हैं सेकंड कंसेप्ट पे, है ना। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजी कंसेप्ट्स हैं। ठीक है, सेकंड पे चलते हुए देखो पॉइंट नंबर 2, वेट। ठीक है, कंसेप्ट इसमें सेकंड देखो कौन सा है, राइट। डायग्राम बना लेते हैं। देखो ये हमारी लेफ्ट साइड होगी, ये हमारी राइट साइड होगी। ठीक है, अब देखो अब आपको सेकंड टाइप में, सेकंड कंसेप्ट में आपको टोटल पर्सन नहीं दिए हुए,
है ना। आपको क्या दिया हुआ है, एक पर्सन का लेफ्ट से रैंक भी दिया हुआ है, एक पर्सन का राइट से रैंक भी दिया हुआ है, ठीक है ना। सपोज कोई पर्सन है, श्रुति ले लेते हैं, है ना, श्रुति लड़की है एक, ठीक है, उसका लेफ्ट से जो रैंक है वो कितना है, 21st, ठीक है। उसका लेफ्ट से मतलब अगर इधर से देखते हैं, इधर से जो देखते हैं तो लेफ्ट से रैंक कितना आ रहा है उसका, 21st, है ना। अगर इस साइड से आप खड़े होकर इसको देख रहे हो तो वो किस नंबर पे खड़ी हुई है, 21वें नंबर पे खड़ी हुई है, ठीक है। और राइट से अगर देखते हो, कोई पर्सन राइट में खड़ा है और वो उसको श्रुति को देख रहा है ना, तो वो कितने नंबर पे खड़ी हुई है, 31st पे, है ना। तो ये लेफ्ट से रैंक दिया हुआ है, ये राइट से रैंक दिया हुआ है ना। मतलब पोजीशन सेम है, श्रुति लड़की तो एक ही है, पोजीशन सेम है। लेफ्ट से कितने नंबर पे खड़ी है, 21st पे, और अगर दूसरी साइड से देखते हैं तो कितने नंबर पे खड़ी है, 31st पे, ठीक है। आपने बताना है टोटल कितने लोग होंगे उस लाइन में, है ना, जिस लाइन में श्रुति खड़ी है, टोटल कितने लोग होंगे। तो देखो अगर आप ये ऐड करते हो 21 + 31, है ना, कितना आ जाएगा, 21 + 31, ये कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा, राइट। बट इसमें देखो दिक्कत क्या है, आपने इस पोजीशन को 2 बार ऐड कर लिया। कैसे, लेफ्ट से भी आपने इसको ऐड कर लिया और राइट से भी आपने इसको ऐड कर लिया। तो क्या कर दोगे, 1 माइनस कर दोगे, ठीक है। तो 52 - 1 आपके सामने कितना आ जाएगा, ये 51, मीन्स उस लाइन में टोटल लोग कितने खड़े हैं, दैट इज 51, ये टोटल है, ठीक है। एक बार मैं फिर से आपको बताती हूं कि आपको एक ही पर्सन की पोजीशन दोनों साइड से गिवन है, इस साइड से भी और दूसरी साइड से भी, टोटल आपको निकालना है, ठीक है। क्या कैसे करोगे, दोनों पोजीशन को प्लस कर दो, ठीक है। जब आप दोनों पोजीशन को प्लस करोगे तो ये वाली पोजीशन 2 बार ऐड हो जाएगी, इसलिए हमने 1 सब्ट्रैक्ट किया, है ना। तो ऐसे स्टूडेंट दूसरा क्वेश्चन करते हैं, राइट, इसी टाइप का, जिसमें आपको जो है एक ही पर्सन की दोनों साइड से पोजीशन गिवन हो, है ना। तो सपोज माया, है ना, लड़की का नाम क्या है, माया, ठीक है। उसकी लेफ्ट से पोजीशन है 51, ठीक है। अगर इस साइड से आप देख रहे हो तो 51 नंबर पे खड़ी है वो, और उसकी राइट से पोजीशन है सपोज 50th, राइट। तो लेफ्ट से 51 नंबर पे खड़ी है, राइट से 50th नंबर पे खड़ी है। आपसे पूछा टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने होंगे उस लाइन में, है ना। क्या करोगे, 51 यहाँ पे माया को मिला के, इधर कितने लोग होंगे, 51 माया को मिला के, ठीक है। इधर से माया को मिला के टोटल कितने लोग होंगे, 50 होंगे। माया माया दोनों में आ गई, है ना। तो दोनों को जब प्लस करोगे 101 बनेगा, पर माया तो दोनों में आ गई, तो क्या कर दोगे, 1 माइनस कर दोगे, है ना। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 100, ठीक है। मतलब इस लाइन में टोटल कितने लोग खड़े हैं, 100 खड़े हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये सेकंड कंसेप्ट था हमारा। पहला था टोटल आपको दिया हुआ है, एक पर्सन की लेफ्ट से पोजीशन दी हुई है, राइट से निकालनी है, ठीक है। और दूसरा था कि टोटल पर्सन आपको निकालने हैं, एक ही पर्सन की दोनों साइड से पोजीशन आपको गिवन है, राइट। तो स्टूडेंट इसमें हमने जो लाइन बनाई ये हॉरिजॉन्टल बनाई, है ना, ये लेफ्ट ये राइट, ठीक है। इसी टाइप में, सेम टाइप में टॉप बॉटम वाला कंसेप्ट भी आ जाता है, ठीक है। टॉप मीन्स लाइन वर्टिकल हो जाएगी अब, ठीक है। तो उसका भी मैं आपको इसमें बता देती हूँ, सेम कंसेप्ट है, जस्ट फर्क इतना है उसमें क्या आ जाएगा, टॉप बॉटम, ठीक है। एक क्वेश्चन हम करते हैं, उससे आपको क्लैरिटी आएगी कैसे करना है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। तो अब देखो लाइन अब इस तरीके से बन गई, मतलब ये टॉप आ चुका है और ये बॉटम, ठीक है, राइट। जैसे सपोज आप जब 10th 11th क्लास में थे, है ना, तो किसी का जो रैंक है वो टॉप से 1 आता था, पहले नंबर पे आया वो बच्चा, और किसी का लास्ट से 1 आता था, ठीक है। मतलब बॉटम से, मतलब सबसे नीचे उसका रैंक आता था, ठीक है ना, नीचे से टॉप पे, राइट। तो ऐसा एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, ठीक है। सपोज क्लास में टोटल स्टूडेंट्स हैं 30, ठीक है। क्लास में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, स्टूडेंट्स 30 हैं, और एक लड़का है सूरज, ठीक है, सूरज, और उसका टॉप से मतलब ऊपर से अगर देखें तो जो रैंक है उसका वो 7th है, ठीक है। आपने बताना कि अगर बॉटम से उसका रैंक देखा जाए, है ना, ऐसे नीचे से उसका जो रैंक है वो देखा जाए तो वो कितना आएगा, टॉप से अगर देख रहे हैं तो 7th है, ठीक है। स्टूडेंट सेम कंसेप्ट लगेगा, सेम कंसेप्ट, है ना। आप इसमें ये देख लोगे कि सूरज के नीचे कितने स्टूडेंट्स हैं, राइट। टोटल 30 स्टूडेंट है, सूरज का 7th रैंक है, तो सूरज के नीचे कितने स्टूडेंट्स होंगे, 23 होंगे, ठीक है। कितने होंगे, 23 स्टूडेंट जो है वो सूरज के नीचे है, राइट। तो सूरज का नीचे से रैंक कितना आएगा, 23 है ना, ऐसे नीचे से जोड़ते आओगे 23, और इस पोजीशन जहां पे सूरज है उसको भी आप ऐड कर दोगे, तो 23 + 1 24th आएगा, कहां से, बॉटम से,
राइट। तो 7th उसका रैंक है टॉप से, 24th उसका रैंक है बॉटम से, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 30। ठीक है, एक और ऐसा क्वेश्चन करते हैं, बाद में वैसे आएंगे क्वेश्चन, उसमें से कर लेंगे। ठीक है ना। अब देखो, तो स्टूडेंट पहले हमने लेफ्ट राइट के पॉइंट लेके डिस्कस किया, उसके बाद हमने टॉप बॉटम जो है उसको लेके डिस्कस किया। ठीक है, अब देखो एक और क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं टॉप बॉटम से, राइट। उसके बाद इन क्वेश्चंस पे बढ़ेंगे। ठीक है, देखो ये टॉप हो गया, ये बॉटम हो गया, राइट। सपोज ए कोई स्टूडेंट है ना, ए कोई स्टूडेंट है, उसका टॉप से रैंक आया 30th। ठीक है, मतलब ऊपर से अगर देखा जाए तो, स्टार्टिंग से अगर देखा जाए तो उसका रैंक कितना है 30th, और अगर बॉटम से अगर देखा जाए तो उसका रैंक है सपोज 31st बॉटम से। बी मीन्स बॉटम, टी मीन्स टॉप। ठीक है, तो देखो आपको सेम स्टूडेंट का दोनों साइड से रैंक दिया हुआ है, टॉप से भी बॉटम से भी, है ना। जैसे वो हॉरिजॉन्टल वाली लाइन में आपको लेफ्ट से रैंक दिया होता था, राइट से कितने नंबर पे वो दिया होता, सेम टाइप है। और आपसे पूछो क्लास में टोटल बच्चे कितने हैं, ठीक है, क्लास में टोटल बच्चे कितने हैं, तो ए का रैंक 30th है टॉप से, बॉटम से 31st है ना। क्या करोगे, 30th टॉप से मतलब ए को मिला के ऊपर जो कितने लोग हो जाएंगे टोटल 30, ए को मिला के, है ना। और अगर बॉटम से उसका 31st है रैंक, तो मतलब ए को मिला के नीचे से पूरे जो है कितने लोग हो जाएंगे 31, है ना। पर इस दोनों केसेस में ए को हमने 2 बार मिला लिया, तो क्या करेंगे 30 + 31 कितना आ जाएगा 61 में 1 माइनस कर देंगे, मतलब उस क्लास में, ठीक है, कितने स्टूडेंट्स हैं टोटल, दैट इज 60। क्लियर टू ऑल, राइट। ठीक है, तो स्टूडेंट हमने अभी तक 2 कंसेप्ट डिस्कस किए हैं, तो जो डिस्कस किए हैं उनके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी हो। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर है ना। जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन है हमारे सामने, इन अ रो ऑफ ट्रीज, है ना। इमेजिन करो ट्रीज लगे हुए हैं लाइन में, है ना, बस में जाते हो देखते हो लाइन में ट्री लगे हुए हैं। वन ट्री इज इन देयर 7th फ्रॉम द ईदर एंड। ठीक है, एक ट्री है वो 7th है दोनों एंड से, इधर से भी उधर से भी, इधर से देखें तो भी 7th है, उधर से देखें तो भी 7वें नंबर पे है। अब ना टोटल ट्रीज कितने उस रो में, है ना। डायग्राम का अगर रूप दें इसको, ठीक है, तो रो है आपके पास ये लेफ्ट राइट, एक ट्री है वो 7th ही है, लेफ्ट से भी राइट से भी वो कितना है 7th। ठीक है, आपको ना इस पूरी लाइन में कितने ट्री है ना। अभी हमने इसको किया था क्वेश्चन को, ये ना, जब एक ही पर्सन की, एक ही चीज की दोनों साइड से आपको दिया हो पोजीशन, ठीक है, तो कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस ट्री को मिला के लेफ्ट में कितने ट्रीज हो जाएंगे 7, यहाँ पे राइट पे इस ट्री को मिला के कितने हो जाएंगे 7, तो 7 + 7 14 में से क्या कर दोगे 1 माइनस। ठीक है, और इस 1 माइनस करने का रीजन क्या होता है, क्योंकि उस ट्री को हम 2 बार ऐड कर लिए होते हैं, है ना, जो करना एक ही बार था। ठीक है, क्लियर टू ऑल। सो बढ़ते हैं आगे। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन आप 1 सेकंड में कर सकते हो, है ना, सिंपल क्वेश्चन कर रहे हैं ताकि अभी आपका बेसिक क्लियर हो जाए, है ना। तो मनीषा है, उसका 11th रैंक है फ्रॉम ईदर एंड, है ना, इधर से देख लिया जाए उधर से देख लिया जाए, है ना, डायग्राम से रूप से आप समझ सकते हो उसको। ठीक है, मनीषा 11th है दोनों साइड से, है ना, इधर से देखें तो भी 11th है, इधर से देखें तो भी 11th है। ठीक है, तो हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन द रो, है ना, टोटल उस रो में कितनी गर्ल्स है वो हमने बताना है। ठीक है, लेफ्ट से भी 11th है, राइट से भी 11th है, तो क्या कर दोगे 11 + 11 कितना होता है 22 - 1 कर देंगे। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा, राइट। सो आई होप ये कंसेप्ट अच्छे से सबको क्लियर हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हुए, ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, इन अ रो ऑफ ट्रीज की लाइन लगी हुई है। ठीक है, एक ट्री 7th है लेफ्ट से एंड 14th है राइट से। ठीक है ना, मतलब अगर लेफ्ट से देखें तो उसकी पोजीशन कितनी है 7th। ठीक है, उस सेम ट्री की, एक ही ट्री है ना, एक ही ट्री के बारे में बात कर रखी है इसमें। 7th है लेफ्ट से और राइट से पोजीशन कितनी है 14th है राइट से। ठीक है, आपको तो ना हाउ मेनी ट्रीज आर देयर इन अ रो, उस पूरी लाइन में कितने ट्रीज हैं, सिंपल क्वेश्चन है। दोनों की पोजीशन को प्लस करके 1 माइनस कर दोगे, आंसर कितना आ जाएगा 14 + 7 कितना होता है 21 - 1 कर दोगे, आंसर कितना आ जाएगा 20, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो रहा है क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, अब देखो ये भी बहुत आसानी से आप कर सकते हो ना, टॉप बॉटम, लेफ्ट एंड राइट की जगह टॉप बॉटम आपको दिया हुआ है, राइट, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ, थोड़ा सा हल्का सा ट्विस्ट है, ज़्यादा नहीं, राइट। देखो अच्छे समझना है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को अच्छे समझना है। ठीक है ना, इन अ रो ऑफ 16 गर्ल्स,
ठीक है, 16 गर्ल्स की रो है, डायग्राम बना सकते हो आप, ठीक है। इस पूरी लाइन में 16 गर्ल्स हैं, लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, ठीक है। When प्रीति was shifted by 2 places towards the left, जब प्रीति को 2 प्लेसेस लेफ्ट शिफ्ट किया गया, लेफ्ट होता है इस साइड, लेफ्ट शिफ्ट करना, राइट शिफ्ट करना, ठीक है ना। तो जब 2 प्लेसेस उसको इधर धक्का दे दिया गया तो उसकी पोजीशन लेफ्ट से कितनी आ गई, 7th, लेफ्ट हैंड से, ये लेफ्ट हैंड है ना, ये राइट हैंड है, ठीक है। देखो क्या हुआ, सिचुएशन क्या हुई, प्रीति को 2 प्लेसेस इधर लेफ्ट खिसका दिया गया, जिसकी वजह से वो 7th आ गई लेफ्ट से, लेफ्ट से कितनी आ गई, 7th, है ना। ये 7th कब आई, जब उसको 2 प्लेसेस इधर लेफ्ट धक्का दिया गया। मतलब क्या आप इमेजिन कर सकते हो उसकी प्रीवियस, है ना, उसकी अर्लियर पोजीशन क्या होगी लेफ्ट से, 9th होगी, है ना। 9th क्यों 9th होगी, 2 प्लेसेस इधर धक्का दिया, इधर खिसकाया गया, तो 8th कब होगी, जब एक प्लेस खिसकाया जाएगा पर 2 प्लेसेस खिसकाया, तो 9th 8th 7th हो जाएगी, ठीक है। ये अर्लियर है, ये अब की है, ठीक है। क्वेश्चन है व्हाट वाज हर अर्लियर पोजीशन फ्रॉम द राइट एंड, उसकी पुरानी पोजीशन क्या थी, राइट साइड से, ठीक है। उसकी लेफ्ट साइड से अर्लियर पोजीशन क्या थी, 9th। टोटल कितने स्टूडेंट हैं, 16, टोटल कितनी गर्ल्स हैं, 16। तो 9th है उसकी लेफ्ट से, तो उसके राइट में कितने लोग होंगे, ना, टोटल 16 है, राइट में कितने होंगे, 7 होंगे ना, ठीक है। 7 तो उसके राइट में होंगे, तो उसको मिला के राइट में जो पोजीशन आएगी 7 और 1 यहाँ पे प्लस कर दोगे, 7 + 1 मीन्स उसकी राइट से कौन सी पोजीशन आएगी, 8th, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल, राइट, ठीक है। 16 गर्ल्स थी, उसको 2 प्लेसेस यहाँ लेफ्ट की तरफ शिफ्ट किया गया, तो उसका 7th आ गया लेफ्ट से रैंक। हमने बताना उसका अर्लियर पोजीशन क्या होगी, राइट से, अर्लियर पोजीशन लेफ्ट से कितनी है, 9th, है ना, 9 से पोजीशन लेफ्ट से है, टोटल 16 है, ठीक है। बिल्कुल आराम से आप पहले कंसेप्ट से बता सकते हो कि उसकी राइट से पोजीशन कितनी होगी, दैट इज 8th, ठीक है। तो ऐसे ना एग्जाम में कुछ ना कुछ ऐसे थोड़ा सा घुमा दिया जाता है, कुछ ना कुछ ट्विस्ट ला दिया जाता है ना। अगर आपको कंसेप्ट पता है, यू कैन ईजिली डू, ठीक है। डायग्राम आप बना सकते हो, है ना, जैसे ये क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए इन एन एग्जामिनेशन, ठीक है। एग्जामिनेशन में क्या है, राजू गॉट 11th रैंक, ठीक है, उसका 11th रैंक आया। तो इस चीज से हम क्या समझते हैं कि उसने टॉप से 11th रैंक आया होगा ना, क्योंकि जब हम बोलते हैं फर्स्ट रैंक आया किसी का, ठीक है, उसका मतलब क्या है, उसने फर्स्ट किया, उसका फर्स्ट नंबर पे पोजीशन आई है, उसका टॉप से रैंक फर्स्ट है ना। तो ये कभी गिवन नहीं होता कि टॉप से 11th रैंक है, इट्स जस्ट गिवन 11th रैंक, तो आप समझ जाओगे, इट्स अंडरस्टूड कि उसका 11th रैंक है राजू का, है ना। तो रैंक वाला जब आ जाए, है ना, कि उसका इतने नंबर पे आया, तो आप वर्टिकल उसको बना लो, है ना, लाइन को। तो 11th रैंक उसका आया राजू का टॉप से, एंड ही वॉज 47th फ्रॉम द बॉटम, है ना। अगर बॉटम से देखें, है ना, टॉप ऊपर बॉटम नीचे, ठीक है। बॉटम से अगर देखें तो उसका रैंक कितना है, 47th, ठीक है, मतलब इसी राजू का इसकी बात चल रही है ना। तो 47th कहां से, बॉटम से, राइट। अमंग दोज हु पास्ड, ठीक है, किनमें से, जो पास हो चुके बच्चे, उनमें से उसका 11th रैंक है स्टार्टिंग से, और 47th रैंक है उसका बॉटम से। तो क्या आप बता सकते हो कितने स्टूडेंट पास हुए, है ना। एक ही पर्सन की टॉप से एंड बॉटम से पोजीशन दे रखी है, तो टोटल हम निकाल सकते हैं ना, कैसे, 11 + 47, है ना, कितना होता है, 58, -1 कर दोगे कितना आ जाएगा, 57, राइट। तो 57 आ जाएंगे टोटल स्टूडेंट जो पास हुए हैं, है ना, क्योंकि आपको ये इन्फॉर्मेशन दोज हु पास्ड वहां से, ठीक है ना। तो 57 पास आ गए स्टूडेंट्स, ठीक है, जो पास हो चुके हैं। 3 स्टूडेंट्स कुड नॉट अपीयर फॉर द एग्जाम, 3 स्टूडेंट ने एग्जाम नहीं दिया और 1 स्टूडेंट फेल है ना। तो मतलब अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात की जाए तो 57 तो पास है, राइट। 3 ने एग्जाम ही नहीं दिया और 1 फेल हो गया, मतलब टोटल स्टूडेंट कितने आ जाएंगे, 61, ऑप्शन नंबर डी, है ना। इस चीज का भी ध्यान रखना है कि क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है। अगर क्वेश्चन पूछते कि पास कितने स्टूडेंट्स हुए तो 57 आंसर आता, ठीक है। पर क्वेश्चन ने क्या पूछा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट में जो 3 जिन्होंने एग्जाम ही नहीं दिया, 1 जो फेल हुए हैं, वो भी तो ऐड करोगे ना, टोटल में आएंगे, राइट। सो आंसर इज 61, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल, ठीक है। ऐसा सेम ये क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हो। रजनी का 11th रैंक आया, 11th मीन्स टॉप से 11th है,
31 बॉटम से है, कौन सी लिस्ट से जो गर्ल्स पास हुई हैं, तो पास निकाल सकते हो आप, ठीक है। 3 गर्ल्स फेल हो चुकी हैं, 3 गर्ल्स जो इन्होंने एग्जाम नहीं दिया है, 1 फेल हो चुकी है, तो टोटल स्ट्रेंथ आप बता सकते हो बिल्कुल आराम से, ठीक है। ये आपने ट्राई करना है ना। इसकी PDF आपको जैसे एप्लीकेशन से मिल जाएगी, डाउनलोड कर सकते हो आप। ये क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। थोड़ा हल्का सा ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन से आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी, है ना। देखो, इन अ रो ऑफ गर्ल्स फेसिंग नॉर्थ, ठीक है, तो लड़कियों की लाइन लगी हुई है यहाँ पे, जो कहाँ पे देख रही हैं, नॉर्थ की तरफ देख रही हैं, राइट। हीना इज 10th टू द लेफ्ट ऑफ माया हु इज 21st फ्रॉम द राइट एंड, है ना। देखो, जब हम नॉर्थ की तरफ देखते हैं, है ना, ये हमारी लेफ्ट साइड होती है, ये हमारी राइट साइड होती है ना, ये हम सभी को पता है, डायरेक्शन चैप्टर में हमने किया हुआ इस चीज को, है ना। देखो, सबसे पहली चीज, ठीक है, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, जब आपके सामने ना 2 वर्ड आते हैं कई बार क्वेश्चंस में, एक एंड आता है, एक हु आता है, हु या विच, ऐसा कुछ, ठीक है। ये काफी पॉपुलर है, हु वर्ड काफी पॉपुलर है। ये हु वर्ड जो है ना, ये लास्ट पर्सन की बात कर रहा होता है, लास्ट पर्सन की। ये जो एंड है ना, एंड आ जाए या फिर बट आ जाए, ये फर्स्ट पर्सन, स्टार्टिंग में जो पर्सन है उसकी बात चल रही होती है ना। इस क्वेश्चन में आपको बताती हूँ, उसने बोला हीना इज 10th टू द लेफ्ट ऑफ माया हु आ गया ना, हु मतलब लास्ट जो पर्सन है माया, उसकी बात चल रही, उसकी कुछ इंफॉर्मेशन बता रखी है ना। तो आप इसको यहां से लास्ट से स्टार्ट कर सकते हो कि जो माया है, हु, जो माया है ना, माया की बात चल रही कि माया इज 21st फ्रॉम द राइट एंड, ठीक है। मतलब राइट एंड से अगर देखा जाए तो जो माया है उसकी पोजीशन क्या है, 21st राइट से, और ये जो हीना है ये उसके लेफ्ट साइड से कितने नंबर पे खड़ी है, 10th पे। ध्यान से देखना क्वेश्चन, वेरी ट्विस्ट। देखो, माया 21st है राइट हैंड से, और माया के लेफ्ट में कितने नंबर पे, 10वें नंबर पे कौन खड़ी है, हीना, ठीक है। देखो, माया का जो लेफ्ट है वो ये होगा, माया का राइट ये होगा, है ना, तो नॉर्थ की तरफ फेस है उनका, तो माया के लेफ्ट में 10वें नंबर पे, ठीक है। मतलब ये 21st हो गया राइट से, मतलब कि ये क्या हो जाएगा, 31st राइट से कौन खड़ी है, हीना। ये चीज अच्छे से देखना, ये क्लियर हुई चीज, है ना। एक बार फिर से बताती हूँ, माया 21st है राइट से, और माया के 10th लेफ्ट में कौन है, हीना। तो 21st पे ये है, जब आप 10 आगे जाओगे, है ना, तो देखो राइट से आगे बढ़ रहा है ना, पहले राइट से यहाँ पे 1 पोजीशन होगी, 2 ऐसे 2 3 4 21st, ये 10 आगे, 21 से 10 आगे बढ़ोगे तो 31 ही आएगा ना। तो ये जो हीना है, ये हमारी राइट से पोजीशन इसकी पता चल चुकी है कितनी, 31st। क्लियर है, ठीक है। अगली लाइन पढ़ते हो, इफ रमन हु इज 17th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, है ना, लड़का रमन है, उसका जो पोजीशन है वो क्या है, लेफ्ट से 17th है ना, तो यहाँ पे कहीं पे लिख देते हैं 17th है उसकी लेफ्ट से, किसकी, रमन की, लड़की होगी क्योंकि रो ऑफ गर्ल्स है ना, रमन कोई लड़की है, उसकी 17th है लेफ्ट से, ठीक है। इज मतलब उसी की, इज 4th टू द राइट ऑफ हंस, हाँ, ये हीना है, ये हंस है, ठीक है। मतलब ये जो रमन है ये हंस के 4th राइट में है, पर स्टूडेंट्स हमें ये पता ही नहीं कि हंस कहाँ पे है, क्योंकि फर्स्ट लाइन में माया और हीना की पोजीशन बता रखी है, उसके बाद रमन का बता रखा है कि वो 17वें नंबर पे है लेफ्ट से, ठीक है, और ये बता रखा कि जो हंस है उसके 4th राइट में है, ठीक है, हंस के 4th राइट में। बट हंस तो यहाँ पे ठीक है ना, हम बना सकते हैं हंस कहाँ पे है, ठीक है, बनाते हैं। ये देखो 17th आ जाएंगे ना, 17 ये लेफ्ट, ये रमन की पोजीशन है, ठीक है, और हंस के 4th राइट में, मतलब हंस कहाँ पे होंगे, हंस इधर थोड़ी बड़ी बना लेते हैं डायग्राम, ठीक है, हंस कहीं यहाँ पे होगी, है ना, हंस यहाँ पे होगी, ठीक है, और उसके 4th राइट में कौन है, रमन, है ना। मतलब हंस की पोजीशन क्या होगी, 30th, लेफ्ट से 30th होगी, है ना, तभी हंस के 4th राइट में, मतलब 4 प्लेसेस आगे कौन है, रमन, राइट, ठीक है। आपसे पूछा टोटल कितनी गर्ल्स होंगी रो में, राइट, टोटल तो आप तब निकाल सकते हो ना जब आपको एक पोजीशन का लेफ्ट से भी पता हो, राइट से भी पता हो। अब देखो अलग अलग पता है, किसी का लेफ्ट से पता है, किसी का जैसे माया का राइट से पता है, हीना का राइट से पता है, हंस का लेफ्ट से पता है, रमन का लेफ्ट से पता है, पर आप टोटल कैसे निकाल पाओगे। टोटल के लिए तो आपको एक पर्टिकुलर पोजीशन की दोनों साइड से पता हो, लेफ्ट से वो कितनी पोजीशन है, राइट से कितनी हो, पर ऐसा कुछ है ही नहीं हमारे पास। तो इसका आंसर आ जाएगा डेटा इनएडिक्वेट, राइट, कि जो डेटा है वो सफिशिएंट नहीं है इस क्वेश्चन का आंसर बताने के लिए,
है ना। तो ऐसे क्वेश्चन भी इसमें होते हैं जिसके ऑप्शन आते हैं कि डेटा काफ़ी नहीं है ना। ये चीज़ें आपने सोचनी कैसे इसका डेटा इन रेडी, क्योंकि इन्फॉर्मेशन इनफ नहीं है ना। टोटल तो आप तभी बता सकते हो ना जब आपको एक पर्टिकुलर का दोनों साइड से पता हो, ठीक है। सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू ऑल, ठीक है। इसको अगर थोड़ी बहुत डाउट है आप फिर से इसको एक बार चेक कर सकते हो, राइट। क्लियर टू ऑल, ठीक है। लेफ्ट राइट का अच्छे से ध्यान रखना है आपने, उसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है, राइट। अब देखो एक इंटरचेंज वाली जो क्वेश्चन है वो भी मैं आपको बता देती हूँ ना। एक दो क्वेश्चन जो टाइप के रह गए हैं वो आपको मैं बता देती हूँ अभी, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स, इंटरचेंज का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। इंटरचेंज ऑफ पर्सन, कि पर्सन की जो पोजीशन है वो बदल देनी है ना। जैसे क्लास में क्या होता था कि जैसे एक बच्चा है ना, काफ़ी वो शैतानी कर रहा है, काफ़ी शोर डाल रहा है ना, तो टीचर क्या करती थी, उसकी जो सीट है वो बदल देती थी, है ना। उसकी सीट पे किसी और को आने दो और उसको कहीं और भेज दिया, इंटरचेंज, है ना। मतलब जो पोजीशन है, जो सीट है वो इंटरचेंज कर देनी, ठीक है। तो उस पर ये क्वेश्चन है ना। तो मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से बताना चाहूँगी कि क्वेश्चन किस टाइप का है इसमें, राइट। देखो, इन अ रो एट बस स्टॉप, है ना। आपको सबको पता है बस में, बस स्टॉप में कितनी लाइनें जो लगी होती हैं ना, तो फिगर बना लेते हैं, है ना। ये लेफ्ट आ गया, ये राइट आ गया, है ना। बस स्टेशन में लाइन लगी हुई है ना। उसमें एक बंदा ए 7th है वो लेफ्ट से, ठीक है। मतलब अगर इस साइड से देखा जाए तो जो ए जो पर्सन है इसका कितना नंबर पे खड़ा है, 7th नंबर पे खड़ा है, ठीक है। बी कोई दूसरा पर्सन है, वो 9th है फ्रॉम द राइट एंड, है ना। बी कोई दूसरा पर्सन ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं सपोज, और इसकी पोजीशन क्या है, 9th राइट साइड से। मतलब अगर इधर से देखा जाए तो ये 9वें नंबर पे खड़ा है, इधर से देखा जाए तो ए 7वें नंबर पे खड़ा है, ठीक है। ये आपको गिवन है, आप इमेजिन कर सकते हो इस चीज को, है ना, ठीक है। अब देखो, इफ दे बोथ इंटरचेंज देयर पोजीशंस, बोथ मीन्स अगर ए और बी अपनी पोजीशन को इंटरचेंज करते हैं। इंटरचेंज का मतलब होता है कि ए जो है वो बी की जगह में चला जाए और जो बी है वो ए की जगह पे आ जाए, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो ए बिकम्स 11th फ्रॉम द राइट, ठीक है। तो अगर ए बी की जगह पे चला जाता है और बी ए की जगह पे चला जाता है, तो आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है कि अगर ए बी की जगह पे चला जाता है तो ए का जो है वो लेफ्ट साइड से कितना नंबर आ जाएगा, 11th। अब देखो ए बी की जगह पे है अब यहाँ पे, और आपको इसमें गिवन है कि बी 9th है राइट से, है ना। और जब ए बी की जगह पे जाता है, ए 11th हो जाता है कहाँ से, लेफ्ट से। तो ध्यान से देखिए, इस पोजीशन का आपको दोनों साइड से पता चल गया। राइट से तो पहले पता ही था, अब लेफ्ट से भी पता चल गया। कैसे? क्योंकि क्वेश्चन ने दे दिया कि जब इंटरचेंज हुई पोजीशन तो ए 11वें नंबर पे आ गया लेफ्ट से। तो सेम पोजीशन, है ना, जो पहले बी की थी, जो 9th थी लेफ्ट राइट से, अब उस पर ए आ गया और अब वो 11th है लेफ्ट से। तो आप टोटल बता सकते हो, बिल्कुल आराम से बता सकते हो, है ना। कैसे? दोनों को प्लस करके 1 माइनस कर दोगे। 11 + 9 कितना होता है, 20, -1 करोगे कितना आ जाएगा, 90। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये इंटरचेंज वाले क्वेश्चन है, बहुत आराम से कर सकते हो आप, ठीक है। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगी, जैसे ए वो 7 था ना पहले लेफ्ट से, अब 11th हो गया, मतलब वो इधर शिफ्ट हुआ राइट, बी तक जाने के लिए वो इधर शिफ्ट हुआ। कितनी प्लेसेस, 4 प्लेसेस शिफ्ट हुआ वो, ठीक है। 4 प्लेसेस शिफ्ट हुआ इधर की साइड। मतलब कि अगर आपको बी की पोजीशन भी बतानी हो तो आप बता सकते हो बी की नई पोजीशन, है ना। पहले तो 9th थी राइट से, ए तक जाने के लिए अगर ये 4 इधर शिफ्ट हुआ है तो बी भी तो 4 उधर शिफ्ट होगा ना। तो अब ये 9वें पे है राइट से, 4 अगर इधर शिफ्ट हो जाएगा तो 13th आ जाएगा ना राइट से। राइट से कितना आ जाएगा, 13th, ठीक है। तो आई थिंक दिस इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो टोटल नंबर ऑफ पीपल पूछ लेते हैं, ठीक है, और दूसरी चीज इसमें क्या पूछ लेते हैं कि दूसरे पर्सन का नया बताओ कि उसकी अब नई पोजीशन क्या होगी, ठीक है ना। सो आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल, है ना। मैं एक और क्वेश्चन ऐसा जो है वो कर लेते हैं ताकि और आपको इसमें क्लैरिटी जो है वो हो जाए, ठीक है ना। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, है ना। अपनी तरफ से क्वेश्चन, ये लेफ्ट है ये राइट है, ठीक है। सपोज कोई यहाँ पे ए पर्सन है, यहाँ पे बी पर्सन है। ए का लेफ्ट से रैंक सपोज दे रखा है 6th, है ना। इधर से देखते हैं तो ए कितने नंबर पे खड़ा है, 6th नंबर पे, ठीक है। बी का राइट से जो रैंक है वो दे रखा है 8th, ठीक है। क्या हुआ, दोनों ने अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर ली। जब इंटरचेंज की
तो ए की जो अब पोजीशन है वो लेफ्ट से कितनी आ गई, 12th, है ना। मतलब जब ए बी की जगह पे आके बैठा, इंटरचेंज हुआ, तो जब ए बी की जगह पे आके बैठा तो ए की जो अब पोजीशन है वो क्या हो चुकी है, 12th हो चुकी है लेफ्ट से। पहले 6 थी, अब हो गई 12th, है ना। तो देखो ध्यान से, ए की पोजीशन का दोनों साइड से पता चल चुका है कि वो राइट से कितनी है, वो लेफ्ट से कितनी है। राइट से कितनी है वो 8th, लेफ्ट से कितनी है वो 12th। टोटल बता सकते हो, आराम से बता सकते हो टोटल क्या आ जाएगा। टोटल 12 + 8 20 - 1 19 पर्सन होंगे उस रो में, ठीक है। और अगर आपको ये बताना हो कि बी की नई पोजीशन बताओ, है ना। देखो ए पहले 6 था लेफ्ट से, अब 12th आ चुका है, मतलब कितना प्लेसेस वो इधर मूव हुआ है, 6 प्लेसेस। 6 प्लेसेस वो इधर गया है, बड़ा है। तो अगर ये 6 प्लेसेस इधर गया है तो ये जो बी है ये भी तो 6 प्लेसेस इधर आएगा ना, दोनों एक दूसरे की जगह पे बैठे हुए हैं। तो पहले ये 8th था राइट से, तो 8 में 6 ऐड कर दिया, 14th हो जाएगा राइट से। कौन, बी, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल, ठीक है। ये किस टाइप के क्वेश्चन थे, इंटरचेंज वाले, है ना। तो एक बार मैं आपको रिकैप करवा देती हूँ हमने क्या क्या किया है ना। हमने रैंकिंग चैप्टर हमने किया था। पहली टाइप हमने इसमें पहला कंसेप्ट जो था वो पढ़ा था कि टोटल पर्सन आपको दिए हुए हैं, एक पर्सन की पोजीशन आपको लेफ्ट से गिवन है, राइट से बताओ, राइट से गिवन है, लेफ्ट से बताओ, ठीक है। दूसरा इसमें क्या था आपके पास कि एक ही पर्सन की आपको दोनों साइड से पोजीशन पता है। जो कंसेप्ट हम हर टाइप में लगा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। दोनों साइड से आपको पता है, टोटल बताना है आपने, दोनों को प्लस करके 1 माइनस कर दोगे। फिर हमने टॉप बॉटम वाला किया, सेम कंसेप्ट है, बस टॉप बॉटम है, लेफ्ट राइट की जगह पे, राइट, ठीक है। उसके बाद इंटरचेंज वाला कंसेप्ट आ गया हमारे पास, राइट, ठीक है। तो इसका कंसेप्ट है ये। बाकी कई बार क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्टी हो जाता है, कुछ बड़ा कर देते हैं, कुछ ट्विस्ट डाल देते हैं, राइट। तो यू नो द कंसेप्ट, है ना, आपको कंसेप्ट आता है, यू कैन डू। फिगर बनानी है, डायग्राम बनानी है, ठीक है, प्रैक्टिस करने हैं आपने इसके क्वेश्चन, राइट, ठीक है। और एक और क्वेश्चन जो है लास्ट में, हमारे पास 2-3 मिनट है ना। एक और क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी, ठीक है। कई बार क्या होता है, जैसे, है ना, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, यहाँ पे ए पर्सन बैठे हैं, यहाँ पे बी पर्सन बैठे हैं, ठीक है। आपको दिया ए का जो रैंक है वो 11th है लेफ्ट से, ठीक है। बी का रैंक सपोज 12th है राइट से, ठीक है। आपसे पूछा, आपको दिया हुआ है कि इनके बीच में 3 लोग बैठे हैं, हाँ, इनके बीच में कितने लोग बैठे हैं, 3 लोग बैठे हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बताओ, मैक्सिमम नंबर कितने हो सकते हैं उस लाइन में, मैक्सिमम। ए इधर से है, ठीक है, बी का इधर से दे रखा है राइट से, इनके बीच में 3 है, मैक्सिमम बताओ, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं। देखो ए को यहाँ पे ए को मिला के कितने हो जाएंगे, 11, ठीक है ना, लेफ्ट से ए को मिला के, यहाँ पे बी को मिला के टोटल कितने हो जाएंगे, 12, ठीक है। बीच में 3, तो टोटल कितना आएगा, तीनों को प्लस कर दोगे ना, 12 + 3 + 11, 12 + 3 15, 15 + 11 26, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं उसमें, 26 हो सकते हैं। पर अगर मिनिमम पूछ लिया, ठीक है ना, जब मिनिमम कि कम से कम कितने लोग हो सकते हैं उस लाइन में, कम से कम, ठीक है। तो ये जो 3 है ना, वो आप इस तरीके से नहीं लोगे, फिर आप बी को इधर ले लोगे ताकि वो ओवरलैप हो जाए, ए और बी जो है, तब आप बी को, क्योंकि हमने मिनिमम निकाला है ना कि मिनिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम तो ये हो गया 26, ठीक है। कोई बीच में 3 लोग हैं, ठीक है, बीच में 3 लोग हैं, पर ऐसा भी तो हो सकता है, देखो 1 2 3 ऐसे आ जाए 3 लोग, और बी इधर आ जाए, ऐसा भी तो हो सकता है ना, बी 12th है यहाँ से राइट से, तो बी इधर आ जाए, क्योंकि हमने मिनिमम बताना है ना, ए और बी के बीच में। तो इधर से भी अगर आप देखो तो ए और बी के बीच में आ रहे हैं ना 3 लोग, तो मिनिमम के लिए सिंपल क्या करोगे, जो मैक्सिमम का आ रहा है उसमें से 2 माइनस कर दोगे, 24 आ जाएगा मिनिमम, ठीक है ना। 2 और ये जो 3 है, ठीक है। देखो ये कैसे आता है ना, देखो कैसे आता है ये। सबसे पहले देखो, अगर आप इधर से मिलाओगे ना, ए को मिला के कितने लोग हो जाएंगे, है ना, मिनिमम वाला निकाल लेते हैं, ए को मिला के तो हो जाएंगे 11th, है ना, क्योंकि ए 11th है लेफ्ट से, है ना। और अगर आप इधर से देखते हो राइट साइड से, तो बी को मिला के कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, ठीक है। टोटल कितने हो गए, 23 हो गए, 11 + 12 23 हो गए ना टोटल, राइट। इधर से भी मिल गए और उधर से भी मिल गए, ठीक है। पर एक चीज आपने इसमें नोटिस की,
गहराई। जब आपने इधर से कैलकुलेट किया तो आपने ए को भी इंक्लूड किया, बी को भी किया, क्योंकि बी इधर था ना, बी साइड इस साइड था, बी को भी इंक्लूड किया, ठीक है, और उनके बीच में जो 3 बंदे थे वो भी इंक्लूड थे। और जब आपने इधर से किया, ठीक है, जब आपने इधर से किया तब भी ए इंक्लूड हो रहा है, बी इंक्लूड हो रहा है। ए बी 2 बार इंक्लूड नहीं हो गए। 11 + 12 में जो हमारे पास 23 आया, इसमें ए बी जो है ये 2 बार इंक्लूड हो चुके हैं, ठीक है, 2 बार इंक्लूड हो चुके हैं। और ये जो 3 बंदे हैं ये भी 2 बार इंक्लूड हो चुके हैं ना। ऐसे जब हमने लिया तो भी ये 3 बंदे इंक्लूड हो गए, जब आप इस साइड से ले रहे हो तब भी ये 3 बंदे इंक्लूड हो रहे हैं। मतलब कि टोटल आप कितने लोग माइनस करोगे, है ना, ये जो 23 है इसमें आप कितने माइनस करोगे। एक तो ए भी 2 बार इंक्लूड हो गए, वो माइनस करोगे, और एक जो बीच में 3 है वो माइनस, मतलब 5 माइनस करोगे। आंसर कितना आ जाएगा, 18 आएगा ना, ठीक है, इसको नहीं देखना आपने, आंसर कितना आ जाएगा 18, ठीक है, क्लियर होगी बात, ठीक है। सो ये आपका हमारा लेक्चर था आज का, रैंकिंग, ठीक है। इसके क्वेश्चन जितने हो सके उतने हमने प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। कंसेप्ट हम सारे कर चुके हैं, अब बस यू नीड प्रैक्टिस, ठीक है, और वो आपने करनी है अच्छे से। थैंक यू सो मच टू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।